Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. So in the last lecture, we are discuss about GSM systems and the today's topic is GSM subsystem. So before start our today's topic, first of all, we revise our last lecture. In last lecture, we are study about the GSM features, the GSM services, GSM radio aspects, and the GSM architecture. In today's session, we are discuss about the GSM subsystems, then functions of subsystems, the air interface specifications, and last GSM radio subsystems. तो आज के सेशन में हम देखेंगे GSM subsystems, उस सबसिस्टम की फंक्शंस देखेंगे, देन एयर इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे, और लास्ट में हम GSM रेडियो सब सिस्टम्स देखेंगे। तो ये हो गए आज के सेशन की टॉपिक्स। So before start our today's topic, first of all, we discuss about the learning outcomes. So the learning outcomes are, you will able to learn about the GSM subsystems, you will able to understand the functions of the subsystems, and you will able to know the air interface specifications, and in last you will able to understand the GSM radio subsystems। तो ये हो गए आज के सेशन के लर्निंग आउटकम्स जो हम पढ़ने वाले हैं। So getting started with the session, our first topic is GSM architecture. So this is GSM system architecture, that is architecture of GSM system. So in this architecture, mobile station is there, then base station radio subsystem, then network switching subsystem, and PN is the public network, OSS that is operational subsystem। तो इसमें क्या होता है कि ये जो BTS है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, इज कनेक्टेड टू द बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, देन अगेन फॉर दिस second mobile station, BTS is connected to BSC, and both BSCs are connected to OMC, that is Operation and Maintenance Center। तो इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर में ऑपरेशन और मेंटेनेंस होता है। देन HLR is the home location registers, VLR is the visitor location registers, and AUC is the authentication center। So these three are again connected to MCS, that is mobile service switching center, and this mobile service switching center is connected to OMC, that is controller। So this part is the operation support subsystem, that is OSS, and in last there is PSTN, ISDN, and data network। So these are the our destination। So this is our GSM system architecture। So first one is mobile station, that is MS। तो अभी मोबाइल स्टेशन देखेंगे GSM सबसिस्टम में। So the mobile station is also a subsystem, but it is usually considered to be a part of base station subsystem for architecture purposes। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेस स्टेशन सबसिस्टम का पार्ट हो गया मोबाइल स्टेशन। It communicates with BSS over the radio air interface। तो ये कम्युनिकेट करता है BSS से ओवर रेडियो एयर का इंटरफेस। It is used to support the connections of the external terminals such as a PC or fax। जैसे हम PC यूज करते हैं या फैक्स यूज करते हैं तो उसमें ये सपोर्ट आता है। Then second is base station subsystem, that is BSS। So the base station subsystem is also known as radio station subsystem, that is RSS। So in base station subsystem, it consists of a number of base station controllers, that is BSCs, and base transceiver station, that is BTS। So each BSC is connected to a number of BTS, which in turn provides radio interface for devices। तो इसमें जो BSC होते हैं, that is base station controller, ये कनेक्ट किसको होते हैं, BTS से, that is base trans receiver station से, जो प्रोवाइड करता है रेडियो इंटरफेस फॉर डिवाइसेस। Then second, base station subsystem, that is BSS। The BSS gets connected to MS through a radio, that is air interface, and it also gets connected to the network and switching subsystem, that is NSS। तो ये जो बेस स्टेशन सबसिस्टम होता है ये मोबाइल स्टेशन से कनेक्टेड होता है थ्रू कैसे, रेडियो, दैट इज एयर इंटरफेस। ओके, एंड इट आल्सो गेट कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम, ये आल्सो कनेक्टेड होता है NSS से।
The GSM uses the Open System Interconnection that is OSI model. तो जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है उसमें ये GSM यूज होता है. Then network and switching subsystem that is NSS. So the network and switching subsystem consists of a number of mobile service switching centers. तो इस सबसिस्टम में क्या होता है, मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर MSCs यूज होते हैं. Each MSC consists of the NSS interfaced to a number of BSCs in the BSS. There are also home location register that is HLRs and visitor location register that is VLRs. Then the NSS uses the intelligent network that is IN and the signaling is one of the main switching function of the GSM. तो NSS में क्या यूज होता है, इंटेलिजेंट नेटवर्क यूज होता है IN और signaling is the main switching function of the GSM. The NSS is designed to manage the communication between GSM and other communication users. तो NSS क्यों डिज़ाइन होता है, वो मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन GSM एंड अदर कम्युनिकेशन यूजर्स. एंड द लास्ट इज ऑपरेशन सपोर्ट सबसिस्टम दैट इज OSS. So the OSS consists of the authentication center that is AUC, equipment identity register that is EIR and the operation and maintenance center that is OMC. तो OSS में क्या कंसिस्ट रहता है, ऑथेंटिकेशन सेंटर, देन EIR that is इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर भी होता है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर भी होता है. The areas coming under OSS are network operation and maintenance, चार्जिंग एंड बिलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट. तो ये एरियाज OSS में आते हैं. कौन कौन से एरिया, नेटवर्क ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, चार्जिंग एंड बिलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट. अभी देखेंगे फंक्शंस ऑफ सब सिस्टम्स. तो मोबाइल स्टेशन दैट इज MS. अब मोबाइल स्टेशन का फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे. सो फर्स्ट इज इट कम्युनिकेट्स विद द BSS ओवर द रेडियो एयर इंटरफेस. तो मोबाइल स्टेशन ये कम्युनिकेट करता है विद BSS से, कैसे, ओवर द रेडियो एयर इंटरफेस. एंड द सेकंड फंक्शन इज इट सपोर्ट्स द कनेक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल टर्मिनल्स सच एज PC और फैक्स. तो क्या करता है फंक्शन मोबाइल स्टेशन का, क्या है, इट सपोर्ट्स द कनेक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल टर्मिनल्स सच एज PC और फैक्स. देन नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ बेस स्टेशन सबसिस्टम. तो अभी बेस स्टेशन सबसिस्टम के फंक्शंस देखेंगे. मैनेजमेंट टू रेडियो चैनल कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू यूज अ स्पीच. देन मैनेजमेंट टू डाटा और सिग्नलिंग चैनल्स. तो क्या करता है, ये मैनेज करता है टू द रेडियो चैनल कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू यूज अ स्पीच. जो स्पीच होती है उसका यूज होता है. देन इट आल्सो मैनेज टू डाटा और सिग्नलिंग चैनल. जो डाटा और सिग्नलिंग चैनल्स होते हैं उसका भी मैनेजमेंट बेस स्टेशन सबसिस्टम से होता है. देन मैनेजमेंट टू एलोकेशन एंड रिलीज ऑफ चैनल्स फॉर कॉल सेट अप. अगेन बेस स्टेशन सबसिस्टम क्या मैनेज करता है, एलोकेशन एंड रिलीज ऑफ चैनल्स फॉर ऑल कॉल सेट अप. एंड मैनेजमेंट टू रिलीज कंट्रोल फ्रीक्वेंसी होपिंग एंड ट्रांसमिट पावर एट द मोबाइल स्टेशन. आल्सो इट मैनेजेस टू ट्रांसमिट पावर एट द मोबाइल स्टेशन. तो ये हो गए फंक्शंस हमारे बेस स्टेशन सबसिस्टम. देन द फंक्शंस ऑफ नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम दैट इज NSS. तो अभी नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम के फंक्शंस देखेंगे. सो फर्स्ट इज इट मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन GSM एंड अदर कम्युनिकेशन यूजर्स. तो नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम का फंक्शन क्या हो गया, ये मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन GSM एंड अदर कम्युनिकेशन यूजर्स. ओके. देन सेकंड द सिग्नलिंग इज मेन फंक्शन फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द नेटवर्क्स दैट इज द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल स्टेशन. So the signaling is also managed. तो क्या होता है सिग्नलिंग, द मेन फंक्शन फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है कहाँ से, बिटवीन नेटवर्क दैट इज द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल स्टेशन. देन द सिग्नलिंग इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स सच एज लोकेशन एरिया आइडेंटिटी, कॉल सेटअप एंड लोकेशन अपडेटिंग एक्सेट्रा. Then the function of operation support subsystem that is OSS. अभी operation support subsystem के functions देखेंगे. तो first is
इट ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स द नेटवर्क। क्या करता है, ये ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है नेटवर्क को। देन इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ चार्जिंग एंड बिलिंग। तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, जो रिकॉर्ड होता है चार्जिंग और बिलिंग का उसको मेंटेन करता है। देन इट मैनेजेस द वेरियस मोबाइल इक्विपमेंट्स, जो डिफरेंट मोबाइल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको मैनेज। नाउ वी विल सी द एयर इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस। अभी एयर इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस क्या है वो देखेंगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एयर इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस लिखो करके। तो इसमें पहला है रिवर्स चैनल फ्रीक्वेंसी, तो कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, 890 टू 915 मेगाहर्ट्ज। देन सेकंड स्पेसिफिकेशन इज फॉरवर्ड चैनल फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग, तो कितनी होती है फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग, 45 मेगाहर्ट्ज। देन फ्रेम रिकॉर्ड, ये होता है 4.615 मिलीसेकंड। देन यूजर्स पर फ्रेम कितने होते हैं, 8 यूजर्स पर फ्रेम में कितने 8 यूजर्स होते हैं। देन मॉड्यूलेशन डाटा रेट, तो मॉड्यूलेशन डाटा रेट कितना होता है 270.83 kbps। ओके, एंड टाइम स्लॉट पीरियड, तो कितना होता है टाइम स्लॉट पीरियड 576 टू 576.9 मिलीसेकंड। देन द GSM radio subsystem, that is RSS. So the GSM system consists of many subsystems such as MS, BSS, NSS and OSS. So the base station subsystem BSS is one of the subsystems of a GSM system architecture, and it is known as a radio subsystem, that is RSS. Then the RSS consists of a number of base station controller, that is BSCs. तो जीएसएम सिस्टम में क्या होता है, मिनी सब सिस्टम्स होती है। कौन कौन से सब सिस्टम होती है जीएसएम सिस्टम में, मोबाइल स्टेशन हो गया, देन बीएसएस हो गया, देन एनएसएस हो गया, देन ओएसएस हो गया। तो बेस स्टेशन सब सिस्टम दैट इज बीएसएस, ये क्या है, इज वन ऑफ द सब सिस्टम ऑफ जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर, और उसको ये क्या बोलते हैं, रेडियो सब सिस्टम बोलते हैं। देन दिस रेडियो सब सिस्टम में क्या होता है, नंबर ऑफ बेस स्टेशन कंट्रोलर्स होते हैं, दैट इज बीएससीज। Then each BSC connects to a number of base trans receiver systems, that is BTS। तो हर एक BSC कनेक्ट होता है किससे, नंबर ऑफ बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम से कनेक्ट होता है। देन ईच BTS कनेक्ट्स टू अ नंबर ऑफ मोबाइल स्टेशंस, और ये जो BTS होता है दैट इज बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, ये कनेक्ट होता है नंबर ऑफ मोबाइल स्टेशन से, दैट इज MS। A BSC along with the BTS connected to it together form a base station system BSS। अब ये जो BSC होते हैं along with BTS ये कनेक्ट होते हैं एक में से, तो क्या फॉर्म होता है, अब बेस स्टेशन सिस्टम फॉर्म होता है, दैट इज BSS। The various BSCs in the RSS layer connect to MSCs in the NSS, and each BSC in turn communicates with a number of BTCs and so on। देन प्रोग्राम आउटकम्स, तो आज के सेशन के जो प्रोग्राम आउटकम्स है वो कौन से पीओज मैप होते हैं वो देखेंगे। सो पीओ वन इज बेसिक नॉलेज। तो आज के सेशन में जो हमने टॉपिक्स लिए उसका बेसिक नॉलेज हमको मिलता है। सो पीओ वन इज मैप्ड। देन पीओ टू, सो पीओ टू इज डिसिप्लिन नॉलेज। तो ये जो आज का टॉपिक है उसमें जो टॉपिक्स आए हैं जैसे जीएसएम, मोबाइल इक्विपमेंट, उसकी सर्विसेज, ये सब हमारे डिसिप्लिन नॉलेज में आता है। सो PO2 इज आल्सो मैप्ड। देन PO4 इज इंजीनियरिंग टूल्स। तो जैसे हमारी GSM किट होती है, हमारा मोबाइल हैंडसेट होता है, ये सभी इंजीनियरिंग टूल्स ही है। प्रैक्टिकल में जैसे हम उसका यूज़ करते हैं, तो ये होगा एक प्रकार का हमारा प्रैक्टिकल टूल। सो PO4 इज मैप। देन PO8 इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो अभी जैसे हम इंडिविजुअली या फिर टीम में अगर हमको प्रोजेक्ट बनाना है या काम करना है कोई GSM किट पे या मोबाइल, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल वी कैन डू अ स्मॉल प्रोजेक्ट, तो ये PO8 में आता है, दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो टीम वर्क में हम वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देन PO9 इज कम्युनिकेशन। तो अभी जैसे आज के टॉपिक्स में हमने जैसे मोबाइल हैंडसेट देखे, GSM देखा, तो वो सब कम्युनिकेशन में आता है। सो PO9 इज आल्सो मैप्ड। एंड PO10
PO10 इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के सेशन में जो हमने टॉपिक्स देखे वो हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग में यूज आते हैं। ठीक है, सो PO10 इज आल्सो मैप। So, my dear students, we will summarize our lecture. Today we have learned about GSM features, then GSM services, then GSM radio aspects, then GSM architecture. तो हमने GSM के फीचर्स देखे, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, देन सर्विसेज देखे, GSM की कौन सी सर्विसेज होती है, उन सर्विसेज की भी सब सर्विसेज होती है वो भी देखे हमने। सो GSM सर्विसेज, देन GSM रेडियो एस्पेक्ट्स, कौन कौन से GSM रेडियो एस्पेक्ट्स होते हैं वो देखे, कौन सी GSM रेडियो पैरामीटर्स होते हैं वो भी पैरामीटर हमने देखे इसमें, देन GSM आर्किटेक्चर, और लास्ट में हमने GSM आर्किटेक्चर देखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के सेशन के टॉपिक्स। So my dear students, hopefully you enjoy the today's session. Thank you. In the next class, we are going to learn about GSM call routines. Thank you.